Hello students, myself is Simran Makkad and I'm your science teacher, and in this video I am going to tell you about the main questions of chapter 13, that is the magnetic effect of current. Students, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 13 के जो समरी पॉइंट्स हैं, दैट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, जो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेंगे. First point of this chapter, it is a compass needle is a small magnet. Its one end which points toward the north is called a north pole, and the another end which points toward the south, it is called the south pole. Students, we know that अगर हम किसी magnet के बारे में discuss करते हैं, there are the two poles of the magnet. One is the north pole and another is the south pole. We know that a compass needle it is also behave like a small magnet. और मैग्नेट की तरह इसके भी दो पोल होते हैं, वन इज द नॉर्थ पोल एंड अनदर इज द साउथ पोल. और वो पॉइंट जो नॉर्थ डायरेक्शन की और मूवमेंट शो करता है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, एंड द पॉइंट विच शो टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द साउथ पोल ऑफ दैट मैग्नेट. कम टुवर्ड द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट. ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो वो रीजन है जो बिल्कुल मैग्नेट के पास वाला रीजन होता है, इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड. और इस रीजन में आप लोग वो जो फोर्सेस हो उनको बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हो. कम टुवर्ड द थर्ड पॉइंट, फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड. अ फील्ड लाइन इज दैट पाथ along which a hypothetical free north pole would tend to move. The direction of the magnetic field at a point is given by the direction that a north pole placed at that point would take. Field lines are also shown closer together where the magnetic field is greater. और ये जो हमारी जो फील्ड लाइंस होंगी, ये कहाँ पर क्लोज होंगी? They will be closer together where the magnetic field is greater और stronger. जहाँ पर हमारा magnetic field greater या stronger होगा, वहाँ पर आपकी ये जो फील्ड लाइंस होगी, ये भी कैसी होंगी? They will be closer to each other. Now move toward the next point of this chapter. A metallic wire carrying an electric current has associated with its magnetic field. The field lines about the wire consist of a series of concentric circle whose direction is given by the right hand rule. This is very important, right hand rule, और इसको जनरली एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को इसको भी right hand rule को बहुत अच्छे से कर लेना है. The pattern of the magnetic field around the conductor. We know that what are the conductor through which the current can easily be passed. The pattern of the magnetic field, अगर हम conductors की बात करते हैं, due to an electric current flowing through it depend upon the, ये factors आप learn करेंगे किनके ऊपर depend करता है, it depend upon the shape of the conductor. The magnetic field of a solenoid carrying a current is similar to that of a bar magnet. You have to learn that point very इसको बहुत अच्छे से learn करना है आपको. Next point देखिए, an electromagnet. We know that electromagnet is a type of the magnet that is made artificially, consists of a core of soft iron wrapped around with the coil of insulated copper wire. Okay. Next point देखिए, a current carrying conductor when placed in a magnetic field experience a force if the direction of the field and that of the current are mutually perpendicular to each other. Means they are making a right angle, like in this way they are making an angle of 90 degree to each other. Then what will happen? Then the force acting on the conductor will be perpendicular to both and will given by Fleming's left hand rule. This is the basis of an electric motor. ये आप लोगों को लर्न करना, what is the basis of an electric motor. An electric motor क्या है? It is a device that converts the electric energy into the mechanical energy. ये भी क्वेश्चन 1 मार्क में कई बार पूछ लिया जाता है. In electric motor, which energy is converted into which form? Then answer of this question is that in electric motor, the electric energy, okay, electric energy is also converted into the mechanical energy. Now, अब देखते हैं हमारे पास next क्या है. Next are also the summary points of this chapter. In our houses, we receive AC electric power. We know there are two electric power, AC and DC, and in our house, we always receive AC electric power of 220 volt, okay, with a frequency of 50 hertz. One of the wire in this supply is with red insulation called the live wire. You have to learn this point, okay. जो red wire होती है उसको क्या बोला जाता है? That is called the live wire.
and the another one of the black insulation which is a neutral wire. Okay, the black one is called the neutral wire. The potential difference between the two is 220 volt. Okay, उनके बीच का जो potential difference है वो कितना है? That is 220 volt. The third is earth wire that has a green insulation. Clear? आपको तीनों कलर पता चल गए. One is red, second is black, and third one is of green insulation, and this is connected to a metallic body deep inside the earth. Okay, it is used as a safety measure to ensure that, ये एक safety measure है जो क्या ensure करता है, that sure any leakage of the current to a metallic body does not give any serve shock to a user, जिसकी वजह से वो इसको इसीलिए बनाया गया है ताकि जो यूज करने वाला कंडक्टिंग बॉडी है उसको किसी तरीके का शॉक ना लगे. Come toward the next point of this chapter. What is this fuse? Fuse क्या है? Fuse is the most important safety device used for protecting the circuits due to the short circuiting or overloading of the circuit. You have to learn this point very clearly. इसको learn कर लीजिए बहुत अच्छे से. Students, चलते हैं हम लोग अपने chapter 13 के important questions जो आप लोगों की help करेंगे to gain the maximum marks. First question देखते हैं. This comes in the category of objective type questions. Okay, there is a multiple choice question that can you see on the screen. The statement is written in front of you. A circular loop plays in a plane perpendicular to the plane at paper carries a current when the key is on. Current as seen from points A and B in the plane of the paper and on the axis of the coil is anti-clockwise and the clockwise respectively. Clear? The magnetic field lines point from B to A. Clear? The north pole of the resultant magnetic is on the face close to. अब आपको बताना है ये जो हमारा पॉइंट है ये किसके क्लोज होगा. द N means the north pole of the resultant magnetic on the face close to. ऑप्शंस देखते हैं. It is close to A. It will be close to B. सेकेंड, अगर हम थर्ड ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, A if the current is small and B if the current is large, and D point को हम लोग अगर कंसीडर करते हैं, D if the current is small and if current is the large. अब आपको देखना है, आपको पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इट पॉइंट फ्रॉम B to A and the north pole of the resultant magnetic on the face close to. इसका आंसर होगा if the current is small and B if the current is large. Okay, now I'm going to move toward the next question. This will be the assertion reason of this chapter, assertion and reasoning questions. In the following question, two statements are given to you. One is assertion and another is a reason. And आप लोग देख सकते हो, assertion देखते हैं हम लोग झट से पढ़ते हैं. क्या हमारा assertion है? Magnetic field line do not intersect each other. We know that this is a true statement क्योंकि हमारी जो magnetic lines हैं they will never intersect. आप intersecting का मतलब समझते हो ना, like that one line is cutting with another line and they will meet at a point. तो this one is a true statement कि जो magnetic field lines हैं वो कभी भी intersect नहीं करती. Reason देखते हैं, because there cannot be two directions of the magnetic field at a point. This one is also correct statement क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी magnetic field lines होंगी उनकी कभी भी there will be no two directions of the magnetic field line at a point. Clear to all of you? It means assertion is true and reason is also true and reason is the correct explanation for the assertion. हम लोग assertion reason कई बार कर चुके हैं, हमें पता है assertion reasons में हमारे पास 4 options होते हैं like that. देखिए, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Second statement देखते हैं, assertion और reason दोनों true हैं, but हम reason को correct explanation नहीं बोलेंगे कि ये correct explanation है of assertion का. Assertion is true but reason is false. Okay, both assertion and reason is false. अब हमें पता चली गया है कि हमारा assertion भी true है, reason भी true है, और हमारा जो reason है that is the correct answer for the assertion. जो हमारा answer जाएगा it will be the option A, both are true, and जो हमारा reason है it will be the correct explanation for the assertion. Students, move toward the next question of this chapter. This is the very short answer type question. बहुत आपको इसको small words में लिखना है. मैंने आपको कई बार बोला प्लीज आप लोग word limit का ध्यान रखेंगे to save the time. क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं. हाउ डज द इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज रिलेटेड टू करंट इन अ प्राइमरी कॉइल. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एज वी नो दैट द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन अ प्राइमरी कॉइल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वी नो दैट अगर कोई सब्सटेंस अगर दे आर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इट मीन्स यहाँ पर ये चीज इंक्रीज होने से हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है दैट विल आल्सो इंक्रीज। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर करंट इन सेकेंडरी कॉइल है, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, ओके मैंने ये लिखा आपके लिए, the current in secondary coil it is directly proportional to the current in the primary coil. If current in the secondary coil increases, ultimately इसकी जो value है it will also increase. It means they are directly proportional to each other. Clear to all of you? तो question का आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे? How they are interdependent upon each other? They are directly proportional to each other. It means the induced current in the secondary coil it is directly proportional to the current in a primary coil. इट मीन्स अगर वैल्यू सेकेंडरी कॉइल की, अगर हम करंट इन सेकेंडरी कॉइल इसको इंक्रीज करते हैं, इट शुड बी इंक्रीज, इट्स वैल्यू इज आल्सो इंक्रीज। ओके, अगर ये डिक्रीज होगा, इसके डिक्रीज होने से ये भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इस चैप्टर 13 के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। हमें पता है केस एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में हमारे पास एक पैराग्राफ होता है एंड वी हैव टू रीड दैट पैराग्राफ। रीड करते हैं हम जल्दी से इस पैराग्राफ को। और सोलेनॉइड, सोलेनॉइड है एक लॉन्ग हेलिकल कॉइल ऑफ द वायर थ्रू विच अ करंट इज रन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड इज superposition of the fields due to the current through each coil. It is nearly uniform inside the solenoid and close to zero outside and is similar to the field of a bar magnet, having a north pole at one end and another pole at the other depending upon the direction of the current flow. The magnetic field produced in the solenoid dependent on few factors. देखते हैं कौन कौन से factors के ऊपर depend करता है, such as the current in the coil. This one is the number one factor. Number of the turns per unit length, etc. These are the two units on which the magnetic field produced on the solenoid depend. ठीक है, फिर देखते हैं आगे। The following graph is obtained by researcher while doing an experiment to see the variation of magnetic field with the respect to the current in the solenoid. The unit of the magnetic field as given in the graph attached is millitesla. This one is very important. What are the SI unit of the magnetic field? These are the millitesla and it is represented by sign like this. M for milli and T for Tesla. Okay? And the current is given in ampere. आपको पता है कि करंट को हम लोग मेजर करते हैं in the unit ampere. अब हमने इस पैराग्राफ को रीड कर लिया। Now, what are the answer? These are the MCQs type of the questions. Statement read करते हैं। What type of the energy conversion is observed in a linear solenoid? हमें पता है, अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा, इन लीनियर सोलेनॉइड वी ऑलवेज कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अ मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज इट इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस इन विच वी कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टू मैग्नेटिक, नो। इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, electrical to mechanical, and last option is magnetic to mechanical, and the right answer of this question it is electrical to mechanical energy. ओके, तो इसका मतलब हमारी जो एनर्जी कन्वर्जन हो रही है सोलेनॉइड में, लीनियर सोलेनॉइड में, वो कैसी हो रही है? फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस एंड सोर्स बेस्ड टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। व्हाट विल हैपन इफ द सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? अगर हम एक सॉफ्ट आयरन बार को उसके अंदर प्लेस करते हैं तो क्या होगा? आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, देखिए जरा। द बार विल बी इलेक्ट्रोक्यूटेड रिजल्टिंग इन द शॉर्ट सर्किट। इट इज क्लियर टू यू? Second option that is written on the screen, it is that the bar will be magnetized as long as their current in the circuit is produced. Okay, bar magnetized हो जाएगा, will be magnetized. कब तक magnetized होगा? When there is a current in the circuit, जब तक current flow करेगा circuit के अंदर। Third option is the bar will be magnetized permanently. It means ये जो point B है that is not a permanent, it is temporary. जब तक current जो है वो flow करेगा तब तक हमारे पास जो है हमारा बार वो मैग्नेटिक की तरफ फील्ड शो करेगा उसकी प्रॉपर्टीज। जब उसके अंदर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, इट विल नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। लास्ट पॉइंट देखते हैं, द बार विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी मीन्स। हम लोगों को पता है अगर हम लोग किसी भी सॉफ्ट आयरन बार को उठाकर किसी सोलेनॉइड के अंदर रख देते हैं तो वो जो सॉफ्ट आयरन बार है, जो एक
that is made from the iron, that is from a conducting material, it will start to behave like a magnet as long as the current is flowing in the circuit. It is clear to all of you? So the right answer of this question it is point B. वो जो हमारा बार मैग्नेट है जिसको हमने, सॉरी नॉट बार मैग्नेट, वो आयरन बार जिसको हमने उठा कर किसके अंदर रखा था, सोलेनॉइड के अंदर, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तब तक जब तक उसके अंदर करंट फ्लो करेगा. So the right answer of this question it is option B. Now I am moving toward the next question of this case and source type of the questions. Third question देखिए, the magnetic field lines produced inside the solenoid are similar to that of. Naturally the right answer, इसे तो बिना पढ़े हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं. It will be similar to like that of a bar magnet. Clear to all of you? जो magnetic field lines जो produce होंगी solenoid के अंदर, that are similar, बिल्कुल किसके similar होंगी, बिल्कुल similar होंगी just like that of a bar magnet. So right answer of this question it is bar magnet. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे केस एंड सोर्स बेस का. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट विल बी दिस वन. आफ्टर एनालिसिंग द ग्राफ अ स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब आपके पास ये 4 स्टेटमेंट्स आप लोगों को स्क्रीन पर विजिबल हैं. आपने इन 4 स्टेटमेंट्स को रीड आउट करना है और आपको बताना है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट्स. इनमें से कौन सी 2 ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं और कैसी कौन सी ऐसी 2 हैं दैट आर द फॉल्स स्टेटमेंट. हम लोग स्टेटमेंट्स रीड करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट. दिस वन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकंड देखते हैं हमारे पास जो स्टेटमेंट आप लोगों को दे रखी है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ रहे हो ना कि इसके इंक्रीज होने से हमारी ये वाली चीज जो है दैट विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है सोलेनॉइड से अगर ये इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स इट शुड बी डिक्रीज्ड. दीज आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मूव टुवर्ड द पॉइंट नंबर 3. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड. जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा सोलेनॉइड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हम इसकी बात करते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट. क्लियर. एंड फोर्थ स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट. तो हम लोगों को अब बताना है कि हमारी जो कौन सी स्टेटमेंट है दैट वन द करेक्ट स्टेटमेंट. तो हम लोगों ने जैसे ये 4 स्टेटमेंट रीड कर ली हैं और हमें पता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है. ओके बेटा, तो हमें इसमें से हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. अभी आप लोगों को ये ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज गिवन टू यू, मैग्नेटिक फील्ड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द करंट. वी नो दैट दिस वन इज अ राइट स्टेटमेंट बिकॉज जैसे जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रहा है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू जो है हमारी करंट की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज. इट मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज दिस राइट स्टेटमेंट. अब हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है इन द सोलेनॉइड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. नो, दिस वन इज फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट. नो डाउट इट इज ऑल्सो द राइट वन. और अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. तो हमारे जो आंसर जाएंगे तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दीज आर द स्टेटमेंट दैट आर द राइट स्टेटमेंट. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज द ऑप्शन बी इज विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट मूव करते हैं. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा केस एंड सोर्स बेस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है. देखते हैं फ्रॉम द ग्राफ. जो हम लोगों ने फर्स्ट जो स्टडी करा था, हम लोगों को जो पैराग्राफ दे रखा था उसमें जो हमने ग्राफ जो हम लोगों ने प्रोड्यूस करा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये जो हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, हमने उस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो जो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो ऑप्शंस देखते हैं. फॉर अ करंट ऑफ 0.8 एम्पेयर, वी नो दैट दीज आर द यूनिट ऑफ द करंट. हम लोग इसको मेजर करते हैं एम्पेयर्स में. द मैग्नेटिक फील्ड इज 13 मिली टेक्स्ट्रा. ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं. फॉर लार्जर करंट द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नॉन लिनियरली. थर्ड पॉइंट इज फॉर द करंट ऑफ 0.8 एम्पेयर
the magnetic field is 1.3 millitesla, there is not enough information to find the magnetic. This one is the right, ये तो जो है बच्चे, ये तो हमें देखने से ही पता चल रहा है, this one is the false statement, कि हमें कोई भी ऐसी enough information नहीं मिली टू फाइंड द मैग्नेटिक, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। अब हमने देखना है कि हमारे ये जो 3 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा हमारा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट बैठेगा। तो आप लोग ये देखिए, जिसमें जब हमारा करंट 0.8 एम्पियर है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में मिल रही है, इसमें भी और इसमें भी। और जबकि आपको पता है कि हमारा जैसे जैसे करंट लार्जर होता है द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नॉन लीनियरली, वी नॉट गेट द एक्यूरेट आंसर। सो द हमारा जो आंसर होगा फॉर दिस एमसीक्यू इट विल बी द ऑप्शन बी, फॉर द लार्जर करंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नॉन लीनियरली, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, it is clear to all of you. Now I am moving toward the next question of this chapter, chapter 13. A horizontal power line carries current in east to west. As we know that there are the 4 direction. If I अगर हम इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, दीज आर द 4 डायरेक्शंस। और अगर हम इनकी बात करें और हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब हमने बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द पावर लाइन एट द पॉइंट अबव एंड पॉइंट बिलो द पावर लाइन। यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल हम लोग इसको अप्लाई करेंगे और हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे करंट की एट अ पॉइंट अबव एंड एट द पॉइंट बिलो द पावर लाइन। सबसे पहले हम लोग अबव में फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है इट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, ईस्ट टू वेस्ट अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगर वो अप्लाई करना है तो हमारा जो करंट फ्लो करेगा इट विल फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इट विल बी द पॉइंट अबव द पावर लाइन। ओके, हमें अबव में भी पूछा और हमसे बिलो में भी पूछा। अगर हम अबव की बात करते हैं तो जो हमारा करंट फ्लो करेगा इट विल फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, और अगर हम बिलो की बात करते हैं तो इट विल बी ऑपोजिट ऑफ इट विल बी फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर हमारा जो करंट है अगर इट इज फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन तो व्हाट विल बी द करंट इन द पावर लाइन एट द पॉइंट अबव। अबव में कैसे फ्लो करेगा, इट विल बी फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और अगर हम बिलो की बात करते हैं इट विल बी फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आई होप इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए वो आप लोगों को समझ में आ गए। यही हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखोगे और ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चैप्टर को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी और आपकी हेल्प करेगी टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।